Okay. Is my screen is visible to all guys for online students? Yes, ma'am. Okay, right. So basically in last session, we have discussed about different data types in Python, right? And also we have discussed about data casting, right? So in numerical, we have discussed first with which is int, right? Which represent all the natural number. It can be a positive and negative, right? Next, float, decimal pointer hota hai, right? Whenever we wanted to store some decimal pointer number, that time we use a float data structure, right? Then next is the complex. Whenever you're talking about a real and imaginary number, we use complex data structure, right? True, false, Boolean data structure. आज operators हम जब देखेंगे how the Python is mostly give us input in true and false, वो आप देखोगे, right? Then next कौन सा देखा था हमने? String, text data type, right? String, or you can say a text data type. Now, whenever you're talking about a text data type, when we write in a single quote or a double quote, that is a text data type, or a string you can call, right? You can use inside the quote double space, any special symbol, character, and numerical value, right? Then sequence of data, least we have discussed, right? Least is the order data structure and return in square bracket. It is a mutable data structure where we can add the value or delete the value. Next, which is tuple. It is used to also store multiple values, but immutable data structure, right? Where once we create a data structure, we cannot able to delete or add the values, right? हाँ, conversion करके हम बाद में कर सकते हैं to list to tuple or tuple to the list likewise. Next कौन सा देखा था हमने? Dictionary, right? A dictionary is again used in a curly brackets. It's a keys and values pair, right? When we wanted to store a value with the reference, that time we use a dictionary data structure, right? And set is also there. Set is an order, right? Value every time क्या होती है? Randomly print होती है and unique value pair है. ठीक है? If you're talking about a dictionary also, we cannot repeat a keys. हाँ, values repeat कर सकते हैं. Keys repeat की तो क्या होगी? Latest जो value है वो update हो जाएगी, right? And last one was none. ठीक है? It is in uppercase. When we wanted to only initialize the value, that time we use none data structure. Okay. Now in today's session, guys, as I previously mentioned, we will going to cover operators in Python. कितने operators है guys? कौन से हमने देखा था, right? Right. So one by one, all the operator discuss करेंगे हम. See, the operators in Python. Okay. Arithmetic operator we have, नाम से ही समझ में आ रहा है. Whenever we wanted to do a mathematical calculation, that time we use a arithmetic operator, right? Then we have a comparison operator. When it comes to compare the two values or more than two values, that time we use a comparison operator. So we have equals to, greater than, one by one discuss करेंगे, right? Then next is the assignment operator. Whenever we do, every time हमें वेरिएबल लेके उसे इनिशियलाइज नहीं करना है, ठीक है? दैट टाइम शॉर्ट फॉर्म है विच इज असाइन. तो we'll going to cover the assignment operator. Membership operator, there are two membership operator which is in and not in. If you have a large data set, तो मैन्युअली देखना पॉसिबल नहीं है, राइट? हाँ, ठीक है. So basically manually देखना possible नहीं है. For that reason we use a membership operator. Then next is the identity operator. Memory location पे check करता है, ना कि value same है या like you can say value same है या नहीं check करता है. मेमोरी लोकेशन पे उसका मेमोरी सेव है क्या नहीं चेक करता है. ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड लॉजिकल ऑपरेटर, when you talking about combine a two condition at one time, we use a logical operator. ठीक है? So first of all, looking for the
operators. Now why we use operators? See, variable में what we store, actually we store data, right? तो डेटा कौन सा भी टाइप का हो सकता है, न्यूमेरिकल, स्ट्रिंग, व्हाटएवर, right? But we also need to do a operation. If I store the value something like was num and num1 10, ठीक है? सो टू वैल्यूज है हमारे पास, डेटा है, बट इस डेटा पे कुछ हमें ऑपरेशंस करने, आइदर भी एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, व्हाटएवर. इफ आई हैव अ स्ट्रिंग वैल्यूज लाइकवाइज टेक्स्ट, ठीक है, पाइथन. नाउ यू ऑल्सो वांटेड टू डू सम ऑपरेशन. आपके पास दो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, राइट? नाउ इस दोनों पे आपको मर्जिंग करना है, राइट? चेक करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है, राइट? दैट टाइम हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर, right? So which different type of arithmetic operator? See, arithmetic operators is provide us to do a mathematical calculation. जो हमने मैथ में देखे सिंपल कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन इधर है, ठीक है? सिर्फ एक दो सिंबल का स्ट्रक्चर छोड़ के उसकी वर्किंग वही है जो हमने मैथ में देखा है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, राइट? फर्स्ट अर्थमेटिक में जो है विच इज एडिशन. नाउ एडिशन हमने ऑलरेडी देखा है, when it's talk it come like whenever we wanted to add a value, that time we use a addition. We have a cell 1 and cell 2 variable, right? उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है, आपको क्या करना है, सेल, दोनों सेल ऐड करने हैं. दैट टाइम हम किसका यूज करेंगे, एडिशन का, राइट? देन नेक्स्ट इज द सब्सट्रैक्शन. ठीक है? Now whenever you talk about the subtraction, when we have a two values और आपको एक वैल्यू सब्सट्रैक्ट करनी है उसके अंदर से, दैट टाइम हम किसका यूज करेंगे, सब्सट्रैक्शन का, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा था गाइस, मल्टीप्लीकेशन. ना मल्टीप्लीकेशन के लिए वीडियो स्टक हो रहा है क्या? नो मैम. एक बार आपका नेटवर्क चेक करना प्रियंका. हो गया मैम. ओके चल, ठीक है. देन वी हैव अ मल्टीप्लीकेशन. जब हम मैथ देखते हैं, मैथमेटिकल के जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, राइट? बट दिस सिंबल्स वी डोंट हैव ऑन आवर कीवर्ड, फॉर दैट रीजन मे बी वी हैव अ multiplication symbol for this one, right? So if I have a value with, I wanted to multiply 3 to 2, ठीक है? तो इंटरनली ये किस तरह से होता है, 3 प्लस 3, 6 रिजल्ट में हमें मिलता है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, देखो मल्टीप्लीकेशन हुआ, एक्सपोनेंशिएशन है, राइट? सेम एज यू कैन कंसिडर पावर ऑफ नंबर, हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है? नाउ एक्सपोनेंशिएशन किसके लिए यूज होता है, जब हमें पावर ऑफ उस पर्टिकुलर नंबर का निकालना पड़ता है. नाउ मैंने किया 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इंटरनली किस तरह से होगा ये, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो आंसर में क्या आएगा हमें, 27, ठीक है? पावर हम इस तरह से ही निकालते हैं. तो फॉर दैट रीजन हमारे पास कौन सा है, विच इज द मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंशिएशन, राइट? नेक्स्ट वी हैव गाइस डिवीजन, राइट? जो हम डिवीजन करते हैं मैथमेटिक में, वही डिवीजन वी हैव. फॉर दैट रीजन हमारे पास कौन सा सिंबल है, बैकस्लैश का, ठीक है? दिस वन इज अ डिवीजन. ना डिवीजन ऑलवेज हमें कौन सा देता है, इनटू फ्लोट फॉर्मेट. वो परफेक्टली भी डिवाइड हो रहा है, फिर भी हमें किस में देगा, फ्लोट में आंसर मिलेगा इसका, ठीक है? इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, इसका आंसर क्या आना चाहिए,
5 आना चाहिए, राइट, बट हमें ऑलवेज किस में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, ठीक है। हाँ, परफेक्टली भी डिवाइड नहीं हुआ तो यूजुअली वो तो पॉइंटर में ही आएगा, ठीक है, बट इवन इफ यू आर डिवाइडिंग दिस वन इन परफेक्टली, दैट टाइम ऑल्सो वी विल गेट इन अ फ्लोट फॉर्मेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज विच इज द फ्लोर डिवीजन, ये ऑलवेज किस में रहता है, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ठीक है, ऑलवेज इन इंटीजर, वो परफेक्टली डिवाइड भी नहीं हो रहा है फिर भी हमें आंसर किस में आएगा, इंटीजर में, ठीक है। सो दैट टाइम हम किसका यूज कर सकते हैं, फ्लोर डिवीजन का। ये दोनों ऑप्शनल है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज मॉड्यूल, ठीक है। द मॉड्यूल इज यूज्ड व्हेन इन रियल लाइफ यू टेक एग्जांपल, if the value is divided by for a particular number, ठीक है, नंबर इज ऑड और इवन, दैट टाइम हम किसका यूज करते हैं, मॉड्यूल का, ठीक है। सो सी, अभी मैंने इसे डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। सो बेसिकली मॉड्यूल हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर करता है, ठीक है। सो these all the mathematical operation we have in Python, जो हमने ऑलरेडी मैथ देखे वही है, सिर्फ थोड़े से सिंबल्स का डिफरेंस है, ठीक है। इफ यू टेक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो जावा, उसमें भी यही आपको मॉड्यूल्स देखेंगे इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, विल टेक अ एग्जांपल फॉर द सेम। नाउ हैव सेल, ठीक है, एंड सेल आई राइट हियर 10, ठीक है, and days will take a 2. You can also take a user input here, ठीक है। Now I wanted to do the addition of numbers, ठीक है, then comma separated cells plus days, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, एडिशन करके देगा, राइट। इफ यू सी विल गेट द एडिशन, ओके। नाउ आई वांटेड टू सब्सट्रैक्ट, मुझे इस सेल्स में से कितने सब्सट्रैक्ट करने हैं, 5 सब्सट्रैक्ट करने हैं, तो यूजुअली हमें क्या मिलेगा, विच इज 5 मिलेगा, क्योंकि 5 से सब्सट्रैक्ट किया 5 तो 5 मिलेगा। आपको दूसरी वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन इज परफॉर्म, राइट, देन कॉमा सेपरेटेड, सेम वैल्यू भी लेनी है, डिफरेंट भी लेनी है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे विच इज 10, 100 में से 10 गया, वी विल गेट द 90, ठीक है। एंड मैसेज में हमें किस तरह से, इस तरह से शो होगा, राइट। नेक्स्ट क्या आएगा, इस मल्टीप्लीकेशन, राइट। इफ यू टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लीकेशन, मुझे क्या करना है, 2 दिन के कितने सेल हुए हैं, ठीक है। इफ टेक एग्जांपल, दिस वैल्यू इज द 100 और समथिंग थोड़ी सी बड़ी हुई, तो मुझे 2 दिन के कितने हैं, ये सब ये क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट वी डू, 2 days separated days sales multiply by days, right, 2 day sales is a true 100, okay। now next कौन सा है, नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा था, एक्सपोनेंशिएशन, राइट। सो बेसिकली सी, पावर ऑफ द नंबर, इस तरह से हमने लिखा, एंड कॉमा सेपरेटेड से 3 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशिएशन 3 किया, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, फॉर दिस रीजन एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं, सी 10,000, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन, मैम स्क्रीन स्टक हुआ है, आई थिंक देयर में बी द नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड। जस्ट वेट अ मिनट, नेटवर्क चल रहा है, एक बार देखो, मे बी अनु
Can you disconnect the screen and reshare it again? हाँ कर सकते हैं. Visible guys? Yeah, it's visible now. आवाज अब आ रही है प्रॉपरली? Yes. ओके ठीक है. राइट, सो डिवीजन करना है हमें, डिवीजन ऑफ नंबर, देन कॉमा सेपरेशन से we'll take a random number from here which is 10 divide by 2, right? so pointer में ही आएगा always. इसमें हमने परफेक्ट डिवाइडेड नहीं किया, अगेन किसमें आएगा? पॉइंटर में आएगा, राइट? सो बेसिकली दिस इज अबाउट अ डिवीजन. फ्लोर डिवीजन चेक करना है. नाउ सी, फ्लोर डिवीजन क्या करेगा? ऑलवेज इंटीजर वैल्यू वी विल गेट, विच इज फ्लोर डिवीजन. okay, and double backslash c, we will get here 3. okay, now next last one is module. प्रिंट किया मैंने, ठीक है, विच इज 2. तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0. तो इफ वी वांटेड टू चेक नंबर इज इवन एंड ऑड, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है मोस्टली हम किस में ये यूज करेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट में. ठीक है, नंबर इज इवन और ऑड, इफ द नंबर इज डिवाइडेड फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, दैट टाइम इस मॉड्यूल का हम यूज करेंगे. ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो गाइस, फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो. हेलो यस मैम, ये मॉड्यूल एक बार फिर से समझाइए ना. यस यस. सी, मॉड्यूल क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास नंबर है, ठीक है, तो इंटरनली इसको डिवाइड करता है फर्स्ट. ठीक है, डिवाइड कर, ये टास्क फर्स्ट परफॉर्म होता है एंड देन हमें इसका रिमाइंडर मिलता है. हमने देखा है जब हम ये करते थे मल्टीप्लीकेशन, राइट? सो मल्टीप्लीकेशन से करते, हाँ डिवीजन करते थे, हाँ डिवीजन करते थे, राइट? ये अब क्या हो रहा है? फर्स्ट डिवाइड हो रहा है. तो अब ये डिवाइड होने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5. बट इसका रिमाइंडर कितना आएगा गाइस? 0 आएगा. तो बेसिकली मॉड्यूलर क्या करता है? इसका रिमाइंडर सेंड करता है हमें. अब ये परफेक्ट डिवाइड होगा क्या? मैंने किया 3 से, ठीक है, विच इज मॉड्यूल किया, इसे हम कमेंट करते हैं. इसका रिमाइंडर क्या आया? 1, क्योंकि परफेक्टली डिवाइड होगा क्या? नहीं. फॉर दैट रीजन इसका रिमाइंडर हमें 1 आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइड करता है और जो टॉप पे हमें रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है, विच इज मॉड्यूल. ठीक है, क्लियर है? यस मैम, यस अंडरस्टूड. थैंक यू. ओके ओके. एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं मॉड्यूलर डिवीजन. डिवी, हाँ हाँ, रिमाइंडर हम्म. रिवर्स करना एक वर्ड को हम्म. दोनों का यूज करके रिवर्स. हाँ हाँ वो कर सकते हम. वो क्या, ये दोनों डिवीजन और मॉड्यूल. हाँ क्या करेंगे हम? जब हमारे सब अर्थमेटिक ऑपरेटर होंगे, विल डू एक सेशन रखेंगे फॉर ये लाइक डिवीजन करने का, रिवर्स करने का जो नंबर्स है, क्योंकि उसके लिए लूपिंग लगेगी, वो डायरेक्टली नहीं होगा. जब हमें रिवर्स नंबर वगैरह करने होंगे उसके लिए हमें लूपिंग लगेगा. हाँ, फॉर लूप वगैरह, बिकॉज अभी तक हमने वही वो नहीं देखा है तो वो अभी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो बाद में जब हम लूपिंग वगैरह स्टेटमेंट देखेंगे, रिवर्स वगैरह नंबर, ये लाइक आपको इंटरव्यूज में वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम कर देंगे. ठीक है, ओके. एक बार आपको ट्राई करना है गाइस, तो सिस्टम में एक बार ट्राई करो ये लाइन ऑफ कोड, यूजर से इनपुट लेके ट्राई करो. ठीक है, num1 and num2 as a user input लो and just try with all these operation. किसी को कुछ डाउट है तो just let me know. आप जिस तरह से आपका इनपुट बदलोगे उस तरह से आपका आंसर भी बदलेगा. ओके,
मैम एक बार फ्लोर डिवीजन का क्लियर कर दो ना। यस यस, सी फ्लोर डिवीजन क्या करता है, इफ हमारे पास नंबर्स है, ठीक है, वी हैव अ नंबर समथिंग लाइक वाइज, सो ये डिवाइड करता है, ऑलवेज क्या करता है, उसको डिवाइड, हमने डिवाइडेशन देखा है राइट मैथ में, तो उसको डिवाइड करता है, बट डिवाइड करने के बाद इफ ये फ्लोट में भी आएगा इसका आंसर, ठीक है, अब मैंने किया इधर प्रिंट, ओके, विच इज 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय फ्लोट डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 5 आएगा, राइट, तो इसका आंसर 5 आया, बट मैंने 3 से डिवाइड किया, बट ये आंसर किस में आना चाहिए, अभी पॉइंटर में आना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड होगा क्या ये, नहीं, बट एग्जैक्ट भी डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तर भी हम, फिर भी हमें क्या करेगा, फ्लोट डिवीजन उसका सिर्फ इंटीजर में वैल्यू देगा, ना कि फ्लोटिंग में, क्योंकि ये जो आगे का जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है ये फ्लोट डिवीजन रिमूव कर देता है, ठीक है, फॉर दैट रीजन वेन एवर वी वॉन्टेड टू डिवाइड समथिंग एंड वॉन्ट द आंसर इन इंटीजर फॉर्मेट, ठीक है, वो परफेक्टली भी डिवाइड हो या ना हो, दैट नॉट मैटर्स, बट हमें इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, दैट टाइम हम किसका यूज करेंगे, फ्लोर डिवीजन का, एंड जो डिवीजन होता है, सी ओनली जो डिवीजन होता है ये ऑलवेज हमें किस में रिटर्न करता है, फ्लोटिंग में, ठीक है, सो whenever you want to divide some number and want a floating point number, that time आप किसका यूज करोगे, डिवीजन का, and whenever you wanted to divide something and want integer value, that time आप किसका यूज करोगे, फ्लोर डिवीजन का, ठीक है, क्लियर है, यस मैम, थैंक्स। ओके, यूजर से इनपुट लेना है आपको और सिस्टम में एक बार ट्राई करना है, मैसेज नेसेसरी नहीं है विथ ऑल द ऑपरेशन, ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्किप दिस मैसेजेस, ये मैसेज हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा है टू शो समथिंग ऑन द विंडो, ठीक है, एक मैसेज लिखा है विद द कॉमा सेपरेटेड, आप उसके अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है, इसलिए हमने कॉमा सेपरेट दिया है, हेलो यस, मैम, ये इनपुट वाला मेरा थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, मैं कोड भेजूं क्या आपको हाँ मैसेज हाँ में? सेंड कर दो, हाँ सेंड कर दो, सी बेसिकली आप इसमें क्या कर रहे हो, वी हैव लाइक
जब भी आप इनपुट लेते हो यूजर से, डिफॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, विच इज इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग होता है, ठीक है। फॉर दैट रीजन आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में, ठीक है। सो वाइल टेकिंग अ यूजर इनपुट बिफोर दैट कन्वर्ट इन इंटीजर, ठीक है। तो आपका कोड रन होगा, सो लाइक दिस वन, जस्ट कन्वर्ट दिस इन इंटीजर, क्योंकि स्ट्रिंग पे ये परफॉर्म होंगे क्या टास्क, नहीं होंगे, राइट। राइट। ओके ओके मैम, आई अंडरस्टूड। ठीक है। सी गाइस, जो एडिशन ऑपरेटर है अल्सो थोड़ा सा वर्क करता है, यू कैन से ऑन स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक कि इंटीज सॉरी लीस्ट, टपल एंड सेट पे ऊपर, ठीक है। किस तरह से वर्क करता है, अदर कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं होते हैं, बट वी विल यूज ओनली दिस वन विच इज एडिशन। एडिशन इज ऑल्सो परफॉर्म, ठीक है, कॉन्केनिटेशन। नाउ कॉन्केनिटेशन क्या होता है, जब आप मर्ज करते हो समथिंग, दैट अबाउट द कॉन्केनिटेशन, ठीक है। सो मेरे पास क्या है, आई हैव सब्जेक्ट, राइट, आई टेक अ यूजर इनपुट फ्रॉम हियर, नेम, राइट, input, enter your name, right, we are taking the user input which is name, okay। next देखो, प्रिंट किया मैंने my name is, okay। आप अभी कॉमा सेपरेट से भी लिख सकते हो और अदरवाइज आप प्लस करके भी लिख सकते हो। प्लस क्या करता है, कॉन्केनेट करता है जो आपकी करंट स्ट्रिंग है अनदर स्ट्रिंग से, राइट। सो मैंने किया, स्पेस दिया, आई वांटेड टू गिव अ स्पेस आल्सो, तो मैंने स्पेस दिया, देन मैंने ऐड करके नेम लिखा, तो ये क्या करेगा, जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसको कॉन्केनेट कर देगा और मर्ज कर देगा, ठीक है। सो जस्ट सी, इफ आई एंटर माय नेम इज शिवानी, तो ये क्या कर रहा है, कॉन्केनेट करके दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन टेक एग्जांपल फॉर द डेटा स्ट्रक्चर, this is day 1, some values we have, right, and day 2 this values we have likewise। अब ये दोनों के एडिशन नहीं करके देगा हमें, मींस ये जो वैल्यू है इन दोनों के एडिशन इस तरह से नहीं होगी, ये क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज करेगा। इफ मेरे पास अभी एक डेटा सेट है बट मर्ज होने के बाद ये एक में कन्वर्ट होने के बाद क्या आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो वी विल गेट अ 4 वैल्यूज लाइकवाइज। तो एडिशन उस तरह से वर्क नहीं होता है, दैट विल यूज टू परफॉर्म द कॉन्केनिटेशन ऑन अदर डेटा टाइप्स, ठीक है। सी एडिशन हो रहा है क्या, ओनली सिंगल वैल्यू का एडिशन होता है, एक कॉमन एरर है, स्टूडेंट भी फेस करेंगे कभी कभी। सी दिस इज माय डेटा टाइप, ये कौन सा डेटा टाइप है, अभी लीस्ट है, ठीक है, बट मैंने किया लीस्ट पे ये वाला टास्क, डे 1 प्लस 5, ये ऐड होगा क्या गाइस, यस। बेसिकली व्हेनेवर यू वांटेड टू डू द ऑपरेशन, आपका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी इन फ्यूचर ये मुझे ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, जो हम आगे देखने वाले, okay। So basically whenever you do the operation should be performed only in same data type, ठीक है। आप ये वाला भी देखोगे, अभी प्रिंट किया मैंने which is 10 plus this one, ये वाला भी क्या करेगा, हमें दोनों दिखने के तो सेम है बट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, तो दिस वन इज आल्सो गिव द एरर। क्लियर है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो गाइस।
ठीक है. So moving to the next. अब next operator we have which is a comparison. Comparison समझ में आ रहा है name से ही. We compare the values, right? So what I do, I'll delete all this stuff. Comparison को also we mention as the relationship operator. Okay? See, relationship operator is used to compare the value is same or not. ठीक है? And always return the answer into Boolean format. Booleans means true and false format. ठीक है? So first comparison operator we have equal to. ठीक है? Equal to. Now equal to का हम in general कौन सा यूज करते हैं? Only single equal to. ठीक है? बट पाइथन में आपको इक्वल टू है क्या नहीं चेक करना है, इसलिए हम डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं. क्योंकि सिंगल इक्वल्स टू किसके लिए यूज करते हैं हम? असाइनमेंट के लिए. ठीक है? सो इक्वल्स टू, देन नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू. नेक्स्ट कौन सा है? ग्रेटर देन, ओके, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू. मीन्स वो जो वैल्यू है वो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? इंक्लूड होनी चाहिए. फॉर दैट रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू. देन लेस देन एंड लेस देन इक्वल. ठीक है? सो these all the comparison operator we have. Now why we need a comparison operator? Take an example in real life. Okay, we have a login system. In login system, guys, we know we need to enter a password, right? And then we enter the first of all mail user ID or yes, and then password. Mostly इसी तरह से structure होता है, right? Now ये जो यूजर में पासवर्ड वगैरह एंटर किया है, जो हमारा डेटाबेस है. नाउ व्हाट इज द डेटाबेस? इट्स अ व्हेनेवर यू रजिस्टर योरसेल्फ, आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, राइट? तो आपको उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना है तो आपको आपकी क्रेडेंशियल क्या करनी पड़ेंगी? ऐड करनी पड़ेंगी. ठीक है? सो बेसिकली हाँ, ये ओवरऑल नहीं होता है, बहुत सारा कोड होता है उसमें इंक्लूड. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द जनरल कंसेप्ट, तो बेसिकली आपका जो एंटर किया हुआ डेटा होता है किससे कंपेयर होता है? डेटाबेस से कंपेयर होता है. तभी आपका जो पासवर्ड है और आपका जो डैशबोर्ड है, यू कैन लॉग इन ऑन दैट स्पेसिफिक डैशबोर्ड. ठीक है? सो बेसिकली इक्वल्स टू, ग्रेटर देन वगैरह ये जो वैल्यूज होती है, व्हेनेवर वी वांटेड टू कंपेयर इफ वी हैव अ सेम वैल्यू और नॉट. ठीक है? सो प्रोग्रामिंग वे में हम इस ऑल दी ऑपरेटर का यूज करते हैं. एंड दीज ऑपरेटर इज मोस्टली वी विल गेट इन ट्रू एंड फॉल्स फॉर्मेट. इसका आंसर हमें एस और नो में नहीं आता है. इफ, ठीक है, इफ यस हुआ तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? पाइथन हमें ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है? इफ नो हुआ तो पाइथन हमें रिटर्न में क्या देगा? फॉल्स देगा. ठीक है? जब आप कंपेयर करते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू हुई और व्हाटएवर, एंड व्हेनेवर यू कंपेयर गाइस, वैल्यू भी सेम हुई बट उसका डेटा टाइप अलग हुआ तो आपको क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलेगा. ठीक है? तो इधर भी आपको डेटा टाइप का वो जो कंसेप्ट है, वी नीड टू टेक केयर दैट, राइट? सो टेक ए एग्जांपल फॉर द सेम. रिलेशनशिप ऑपरेटर्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल्स टू लिया मैंने, प्रिंट किया वैल्यू इट्स 10 इक्वल्स टू 10 विच इज 100 इक्वल्स टू 100. नाउ ये क्या है? वैल्यू सेम है. ठीक है? तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? विच इज ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट आपने देखा प्रिंट, मैंने किया ट्रू और अदर लेते हैं वैल्यू विच इज
पाइथन एंड इक्वल्स टू पाइथन। ना ये दोनों सेम है क्या गाइस? नेम सेम है बट इनका केस सेम है क्या? इसमें P इज इन अपर केस था, दिस वन इज द होल इन अ लोअर केस, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में हुआ? इक्वल्स टू ऑपरेटर के बारे में, राइट। नाउ नेक्स्ट कौन सा है? नॉट इक्वल्स टू, राइट। सो आपको यूजर से भी इनपुट लेना है। वी विल टेक अ नेम एज अ यूजर इनपुट, इनपुट एंटर योर नेम, राइट। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं? प्रिंट किया हमने नेम इज इक्वल्स टू पूजा। अब यूजर जब तक पूजा एंटर नहीं करेगा तब तक उसे क्या मिलेगा? फॉल्स ही मिलता जाएगा। ठीक है, सी फॉल्स, कीना भी किया तो फॉल्स, राइट। सो जब तक करेक्ट नेम एंटर नहीं होता है तब तक वो क्या मिलेगा? हमें फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, अगेन मैंने करेक्ट नेम एंटर किया विच इज पूजा, वी विल गेट अ राइट। तो दिस इज अबाउट द इक्वल्स टू, ऑलवेज हमें ट्रू एंड फॉल्स में मिलता है। हाँ, अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका हमें आंसर ट्रू और फॉल्स में मिल रहा है, तो हम क्या ही करें? क्या समझ में आ रहा है इसमें? तो हम किस में यूज करेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट में। जब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी होती है दैट टाइम ये पॉसिबल होता है कि हमें कुछ ट्रू और फॉल्स जब आंसर आता है तब हम स्पेसिफिक कंडीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने वो पार्ट थोड़ा सा कवर किया था, राइट। सी नॉट इक्वल्स टू है हमारे पास अभी, प्रिंट किया। नाउ वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल्स टू, वैल्यू क्या है गाइस? सेम है, राइट। वैल्यू सेम है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलेगा बिकॉज वैल्यूज आर द सेम। सेम नहीं होती तो हमें क्या मिलता? ट्रू मिलता, बिकॉज नॉट इक्वल्स टू क्या करता है? बोथ द वैल्यू शुड बी डिफरेंट, दैट टाइम वी विल गेट ट्रू। इफ द वैल्यूज आर द सेम वी विल गेट फॉल्स। ठीक है, विच इज दिस वन। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो गाइस, किसी को कुछ डाउट है? If you are clear, just give me a thumb so we will move to the next. किसी को कुछ डाउट है तो you can also let me know in chat box. Okay, very good. Now next operator कौन से हमारे पास? इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट। सी आपको ट्राई करना एक बार सिस्टम में, क्या सबने डिसाइड? ओके, सी ग्रेटर देन, प्रिंट किया मैंने वैल्यू विच इज 100 इज ग्रेटर देन 200। नाउ ये ट्रू है क्या फॉल्स है गाइस? डेफिनेटली फॉल्स है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू जो लेफ्ट साइड वैल्यू होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड वैल्यू शुड ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, देन राइट साइड वैल्यू। किसके अंदर होगा ये? ग्रेटर देन के अंदर। ठीक है, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होनी है ऑलवेज ग्रेटर देन होनी चाहिए जो राइट साइड की है, तभी हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अदरवाइज हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, राइट। सी अभी मेरे पास वैल्यू है विच इज 0, ठीक है, और -10 इज ग्रेटर देन 1, ये रिजल्ट में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, बिकॉज वी नो नेगेटिव वैल्यूज जो होती है कितनी भी बड़ी हो पॉजिटिव वैल्यू से, वो क्या होती है? कंसिडर छोटी होती है, राइट। सो वी विल गेट अगेन हियर फॉल्स। हाँ, इधर क्या होता? यू कैन से
ये वैल्यू नहीं होती, पॉजिटिव में होता तो वी विल गेट अ ट्रू। नाउ ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों होता है गाइस, कोई बता सकता है? यस, जो करंट वैल्यू है उससे भी इंक्लूड करता है। अब देखो, इफ 10 इज ग्रेटर देन 10, तो इन रियल लाइफ आपको वोट करना है किसी को, तो आपकी 80 हुआ, आपका एज 80 हुआ तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट उधर इस तरह से लिखा एज 80 इज ग्रेटर देन 80, तो आपका 80 कंप्लीट भी है, आपका स्टार्ट भी है, तो आप कर सकते हो का वोट? नहीं, इन रियल लाइफ। फॉर दैट रीजन आपका करंट जो परसेंटेज है और करंट जो आपकी एज है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए। दैट टाइम हम किसका यूज करते हैं? इक्वल्स टू का, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, क्योंकि वो सर्टन जो फिनिश लाइन है वो एक क्या होनी चाहिए? इंक्लूड होनी चाहिए, राइट। सो ये वाला हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इक्वल्स टू का यूज करते हैं। ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू है क्या? है। तो दैट टाइम क्या करो? इसे रिटर्न में करो ट्रू, ठीक है। नाउ लेस देन भी इसी तरह से वर्क होता है। लेस देन प्रिंट किया मैंने, विच इज 10 इज लेस देन 100, तो ट्रू है। 10 इज लेस देन 100 है क्या? यस। तो इसमें क्या होनी चाहिए? ऑलवेज जो लेफ्ट साइड वैल्यू है स्मॉल होनी चाहिए कंपेयर टू राइट साइड वैल्यू, ठीक है। सी दिस वन वी विल गेट अ ट्रू, राइट। नेक्स्ट प्रिंट किया मैंने, 0 इज लेस देन -100। अब ये वाला बताओ क्या रिटर्न में मिलेगा? 0 इज लेस देन फॉल्स, बिकॉज ये क्या है? माइनस वैल्यू, बट हमारे पास 0 तो है, 0 क्या है? ग्रेटर है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, राइट। इसके अंदर भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है, विच इज 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। सो हमें क्या मिला? ट्रू मिला। Okay, so this is how guys comparison operator is used when you wanted to compare the values. एक बार आपके सिस्टम में ट्राई करो ये लाइन ऑफ कोड, किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। मोस्टली कंपैरिजन ऑपरेटर्स यू कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही वर्क होते हैं, हाँ स्ट्रिंग वैल्यू पे होते हैं, बट वो लाइक अलग डिफरेंट पार्ट है, उसकी कैरेक्टर के हिसाब से होता है, वो उतने डीप में नहीं जाना है हमें। एक बार ट्राई करो सिस्टम में इसी तरह से वर्क हो रहा है तो हम आगे के ऑपरेटर्स देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं, हो गया सबका? ओके, ठीक है. सो which operator till we have covered? First is the arithmetic operator and comparison operator, right? In arithmetic, addition, subtraction, multiplication, division, floor division, right? Exponentiation and modules, right? In in a comparison operator, equals to, not equals to, greater than, less than, greater than, equals, less than, equals to. Okay? All these operator we have covered. Now next is assignment operator. राइट नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर इतना कुछ नहीं है, नहीं भी यूज किया तो दैट इज लाइक उससे काम चल जाएगा. ठीक है. नाउ बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास पाइथन में क्या है? असाइन. असाइन का मतलब ही क्या है ऑपरेटर का? असाइनमेंट ऑपरेटर का कुछ तो असाइन करना. ठीक है. सो पाइथन में ऑलवेज वैल्यू किस तरह से असाइन होती है गाइस? ये साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड, राइट, and equals to right side. So always हमने देखा है वैल्यू लेफ्ट टू राइट असाइंड होती है, सॉरी राइट टू लेफ्ट असाइन होती है. ठीक है. एंड जब भी हमें असाइन करना होता है हम किसका यूज करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का. ठीक है. हाँ, एक टाइम पे आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हो. इफ यू वांटेड टू टेक अ एग्जांपल फॉर द सेम, सी मैंने किया विच इज वेरिएबल ए बी. ठीक है. तो मैंने इसे वैल्यू दी 10, 20. तो एक साथ हम कितनी वैल्यू असाइन कर रहे हैं? 2. तो ए में क्या जाएगा अभी? 10. बी में क्या जाएगा? 20. ठीक है. तो आपको इससे क्या करना है? वाइस वर्सा करना है. वाइस वर्सा करना है. ये में क्या स्टोर होना चाहिए अभी? 20. और बी में क्या स्टोर होना चाहिए? 10. ठीक है. तो आप क्या करोगे? मैनुअली भी कर सकते हो, बट मैंने किया ए कॉमा बी. तो बी में अब क्या स्टोर करो? ए, सॉरी ए में क्या स्टोर करो? बी. ठीक है. और बी में क्या स्टोर करो? ए. बी में क्या स्टोर है गाइस? ए बी. अभी बी की वैल्यू क्या है? 20. तो हम ए में क्या स्टोर कर रहे हैं? ए में बी स्टोर कर रहे हैं, तो 20 जाएगा. ठीक है. और बी जो ये वैल्यू है इसमें, सॉरी ए जो वैल्यू इसमें क्या है? 10 है. और बी को हम क्या कर रहे हैं? देन 10 कर रहे हैं. तो वाइस वर्सा कर रहे हैं. इंटरव्यूज में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिवर्स द वेरिएबल वैल्यू विदाउट टेकिंग द थर्ड वेरिएबल. ठीक है. तो वाइस वर्सा. तो हम वैल्यू इसी तरह से हम असाइन करते हैं. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है. सो फॉर दैट रीजन हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एड असाइन. ठीक है. आई विल एक्सप्लेन दिस वन, एड एंड असाइन. ठीक है. नेक्स्ट विच इज सब्सट्रैक्ट एंड असाइन. जो मैथमेटिकल के है वही देखे हमने, सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, राइट. नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई एंड असाइन. ठीक है. एक्सपोनेंशिएशन एक साथ यूज नहीं करते हैं. एंड दिस, देन डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ठीक है, एंड रिमाइंडर विच इज मॉड्यूल एंड असाइन. ठीक है. सो बेसिकली टेक एग्जांपल, मेरे पास से नंबर है विच इज 10. मैंने नम के अंदर किया नम प्लस 10. तो नम में वैल्यू क्या स्टोर हुई अभी? 20. बिकॉज फर्स्ट क्या है? नम की वैल्यू 10 है. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं? अब नम इधर क्या आएगा? 10. 10 प्लस 10 विच इज द 20. ठीक है. तो 20 किस में असाइन होगा? नम के अंदर. तो ये लिखो या ये लिखो विच इज
एड डायरेक्टली +10, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, नम के अंदर क्या है 10, ठीक है, तो ये एड असाइन डायरेक्टली करेगा इसके अंदर, ठीक है, तो दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम ही हुआ, ठीक है। इफ यू वांटेड टू आल्सो चेक, जस्ट चेक फॉर दिस वन, num which is 10, ठीक है, num is equal to num plus 10, प्रिंट किया मैंने which is 10, सॉरी num, ठीक है, 20 आया। अब num के अंदर मैं ऐड कर रही हूं ऐड +2, अब बताओ num के अंदर वैल्यू क्या आएगी गाइस, 22 आएगी, ठीक है, बिकॉज अब नम में क्या है 20 है, ठीक है। रादर देन राइटिंग दिस लाइन ऑफ कोड मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा ये वाला, ठीक है, बिकॉज असाइन क्या करता है, बेसिकली एडिशन एंड असाइन एक ही साथ हो रहा है, एडिशन एंड असाइन एक ही साथ हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, नम के ऊपर हो रहा है, ठीक है, एंड हमें आंसर मिल रहा है। यही होता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इसी तरह से वर्क होते हैं। एवरी टाइम आपको ऑल द असाइनमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट जिस तरह से होती है उस तरह से आप यूज करोगे। मोस्टली लूपिंग स्टेटमेंट में आप ये स्टेटमेंट आपको ज्यादा दिखाई देगा कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। सो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये वाला, ठीक है। अब मैंने किया नम को मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू, ठीक है, प्रिंट किया विच इज नम अगेन, ठीक है, इट इज 44, जो क्या हो रहा है इस लाइन ऑफ कोड में, अब नम की वैल्यू देखो 20 है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से, तो उसका आंसर क्या आ रहा है 44, वो किस में जाके डायरेक्टली असाइन हो रहा है, नम में। क्लियर है सबको, हाँ 44 होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो गाइस, असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर है सबको, इसमें इतना कुछ नहीं है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म जो हम लिख रहे थे उसका ही शॉर्ट फॉर्म है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट गाइस, किसी को कुछ डाउट है, क्लियर है दिस साइड, ओके। एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का एंड देन विल स्टार्ट, ओके। 110 को स्टार्ट करते हैं गाइस। मैम वो पाइथन वाला स्क्रीन लगा दो। हाँ हाँ चल, डिज्नी गेला तरी डिज्नी गेला तरी यूज केलं होतं ना असं तर 100% आहे ना आपण यूज नाही करणार ना तरी कसं नाही
I'm audible to all online students. We'll start now. ठीक है, तो हमने 3 ऑपरेटर देखे, which is arithmetic, then comparison and assignment. ठीक है, now next operator we have, which is the membership. किसी को याद है गाइस membership operator? Yes. Not in. Okay, so next operator we have, which is in and not in. ठीक है, now why this one is important? See, now if I have a data structure, right, this is my data structure. You can take example, this is the list data structure. Now in this list data structure we have something like a 1000 entry, right? We have some name of a students or a mail ID of a students, right? So manually जाके देखना possible नहीं है कि some student is present or not. ठीक है, so what does membership operator is support us or give us कि if the particular item is present on the data set or not, we'll get the answer in true and false format again. ठीक है, if the particular item is present on the particular data set, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा. ठीक है, सो मेंबरशिप ऑपरेटर आर 2 टाइप्स, विच इज फर्स्ट इज इन एंड नॉट इन. ठीक है, सो रिटर्न ट्रू if the item present into data set. Now in only किस पे वर्क करता है? iterables. Iterables means when you talking about storing a more than one value, ठीक है, that is the iterables, जिसके ऊपर हम लूप चला सकते हैं. सो iterables कौन से? लीस्ट है हमारे पास, ठीक है, टपल है, देन सेट, डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग के ऊपर भी वर्क होता है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है. ठीक है, सो इसके ऊपर भी वर्क होता है. रिटर्न में हमें ट्रू एंड फॉल्स मिलता है. ये क्या है? वाइस वर्सा है. वाइस वर्सा होगा इफ द पर्टिकुलर आइटम इज प्रेजेंट ऑन दैट डेटा सेट, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा. नहीं प्रेजेंट है तब क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा. ठीक है, सो बेसिकली इफ नॉट प्रेजेंट रिटर्न ट्रू. ठीक है, अदरवाइज फॉल्स in bracket if present. Right, now what we do with the help of code, we will going to understand किस तरह से होता है. सिंटैक्स भी देखो इसका एक बार. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है हमें? आइटम टू बी चेक. कौन सा आइटम चेक करना है? दैट आइटम इन क्या है अभी? ऑपरेटर एंड डेटा सेट नहीं. ठीक है, सो डायरेक्टली डेटा सेट लो और डायरेक्टली उसका वेरिएबल ले लो. इट्स डिपेंड ऑन. ठीक है, ओके. नाउ आई हैव अ डेटा सेट which this one. We have a programming language which is Python, then Java, C++, Ruby, C. ठीक है, okay, so we have these all the languages here. Now I wanted to check in this data set कि इसमें MySQL प्रेजेंट है या नहीं. हाँ, अभी डेटा सेट तो क्या है? छोटा है, बट हमें समझ में आ रहा है कि MySQL प्रेजेंट नहीं है. बट व्हाट इफ हमारे पास बहुत बड़ा डेटा स्ट्रक्चर होता? ठीक है, तो हम मैन्युअली जाके चेक करना इज नॉट पॉसिबल. तो व्हाट आई डू इज MySQL इन डेटा. नाउ दिख ही रहा है कि प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा. ठीक है, ना मेरे पास MySQL है बट दैट इज इन अपर केस, फिर भी हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, क्योंकि है पर अपर केस में है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? I'll just copy this same line of code and check with uppercase MySQL.
तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? True. विल गेट ट्रू। ठीक है, नाउ टेक अ एग्जांपल फॉर दिस वन। वी हैव अ डेटा नेम, राइट? नाउ नेम, आई हैव रिटन माय नेम। अब इसके अंदर मुझे स्पेस है क्या नहीं चेक करना है। ठीक है, आई वांटेड टू चेक इफ द स्पेस इज देयर। तो स्पेस के लिए आप किस तरह से कर सकते हो? देखो, प्रिंट इज स्पेस इन नेम। अब स्पेस है क्या? यस, स्पेस इज देयर। तो रिटर्न में क्या मिलेगा? ट्रू। स्पेस नहीं होता इधर तो हमें क्या मिलता? फॉल्स होता। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन चेक। ओके, मेरे पास अभी डिक्शनरी है, वी हैव अ डिक्शनरी, सो डिक्ट लेते हैं। परसेंटेज with the Python, I'll take 60. Java 70, 80, and then Ruby which is 90. ठीक है, now see guys, ये क्या है? कीज एंड वैल्यूज का पेयर है। तो आपको जब सर्च कर रहे हो, व्हाइल यू सर्चिंग, आपको कीज एंड वैल्यूज एक साथ देने की जरूरत नहीं है। इट विल ओनली चेक कीज है क्या नहीं, वैल्यू चेक है क्या नहीं चेक नहीं करता ये वाला। ठीक है, सी प्रिंट किया मैंने 60 in D. What do you think this one return a true or false? ये लाइन ऑफ कोड, सी एरर नहीं आएगा हमें। इफ आई चेक वी विल गेट अ फॉल्स। ठीक है, एरर नहीं आता है व्हाइल यू चेकिंग, मोस्टली तो एरर नहीं आता है, प्रेजेंट हुआ नहीं हुआ, इसमें ही आएगा आपको ट्रू नहीं, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, नाउ सी, मैंने देखा विद द पाइथन, नाउ तो पाइथन we will get, which is, sorry, we need to in, आपने तो बोला कि वैल्यू चेक नहीं करता। वैल्यू चेक नहीं करता। सी वैल्यू प्रेजेंट भी हुई तभी हमें फॉल्स रिटर्न मिलेगा। अब क्या है इसके अंदर? अच्छा सॉरी, हाँ, एरर नहीं देगा। हाँ, यस यस, सी वैल्यू है, वैल्यू तो प्रेजेंट है ना डेटा सेट के अंदर, फिर भी हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? फॉल्स ही मिल रहा है। सिस्टम की को ढूंढ रहा है, की को ढूंढ रहा है सिस्टम। ठीक है, वैल्यू को ढूंढता ही नहीं है, प्रेजेंट भी हुई तो हमें फॉल्स ही मिलता है। हाँ, बट अब मेरे पास ये वाला है विच इज 60 एंड देन मैंने लिखा सम वैल्यू। अब क्या रिटर्न में मिलेगा? हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि वैल्यू कीज को ढूंढ रहा है। तो कीज प्रेजेंट है ना 60, तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो मोस्टली जब आप इन ऑपरेटर का यूज करते हो डिक्शनरी डेटा टाइप, आपको ओनली ऑलवेज कीज मिलेगी। ठीक है, कीज ही ढूंढता है, वैल्यू वो चेक नहीं करता है। चेक प्रेजेंट में भी तो आपको क्या मिलेगा? देन फॉल्स मिलेगा। क्लियर है? एक बार ट्राई करो, ये सेम आपकी सिस्टम में वर्क हो रहा है क्या नहीं? वैल्यू, हाँ, हमारे पास वी हैव डिक्शनरी फॉर्मेट, उसका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमें एक फॉर्मेट पुट करना पड़ता है। फॉर्मेट पुट करने के बाद हमें मिलता है, हम वो डिक्शनरी में देखेंगे। ठीक है, दैट इज एडवांस, हो सकता है वो भी। हाँ, अभी तक हम सिर्फ ये डिस्कस करें, तो बाद में वो भी करेंगे। ठीक है।
डन हो गया सबका? किसी को डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? Yes, Ruby is also a programming language. ठीक है? Now moving to the next guys. See, इसके अंदर हम सेम नॉट इन का भी चेक कर सकते हैं. सो नॉट इन ऑपरेटर वी ऑल्सो हैव दिस वन. वाइस वर्सा होता है एज आई प्रीवियसली मेंशन. सी प्रिंट किया मैंने विच इज पाइथन नॉट इन डेटा. राइट नाउ सी फॉल्स क्यों आ रहा है? बिकॉज पाइथन प्रेजेंट है. ठीक है, वाइस वर्सा होता है नहीं प्रेजेंट हुआ तभी हमें क्या मिलता है? ट्रू रिटर्न मिलता है. प्रेजेंट नहीं हुआ तभी हमें ट्रू रिटर्न मिलता है. ठीक है, सो मैंने किया अभी इसके अंदर आर लैंग्वेज. ठीक है, आर इन डेटा. सी बेसिकली आर नॉट इन करना था ना. हाँ, नॉट इन, वी आर चेकिंग नॉट इन. सो नॉट इन वी विल गेट अ ट्रू. ठीक है, सो बेसिकली वाइस वर्सा होता है ऑन द डेटा सेट विच इज इन एंड नॉट इन. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट गाइस. हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है विच इज आइडेंटिटी ऑपरेटर. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी लोकेशन एक बार डिस्कस करते हैं. ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट मेमोरी लोकेशन डिस्कस करते हैं तभी आपको ये समझेगा. मैंने जब वेरिएबल हम देख रहे थे मैंने बोला था कि जो आइटम्स होते हैं, जो स्मॉल स्केल वैल्यूज होती है, वही सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव होता है. ठीक है, तो उसका परसेंटेज किधर से होता है? 1 to समथिंग लाइक 1 to 555. इधर तक ही पाइथन सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव करता है. इधर तक ही वैल्यू जो है सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव ऑप्टिमाइज होती है. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट अबोव दिस वन, वो डिफरेंट लोकेशन पे सेव होती है. ठीक है, इफ यू टेक लार्जर वैल्यू विच इज 400, तो ये क्या होगी? डिफरेंट. आपने सेम भी वेरी इसी तरह से वैल्यू लिया, D1 400, D2 400, तो ये क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर होगा. बट आपने स्मॉल वैल्यू ली विच इज S1 इज 2 एंड S2 विच इज S2 इज इक्वल टू 2. तो दोनों का ये क्या होगा? मेमोरी एलोकेशन सेम होगा. ठीक है, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड विद द कोड आल्सो. S1 is equal to, we will take a 40 and S2 is equal to 40. ठीक है, and I wanted to check ID of S1 is equals to ID of S2. क्या है? दोनों की आईडी सेम है. हमने किसका यूज किया इधर? इक्वल्स टू का. मीन्स ये आईडी में जो वैल्यू है और इसमें जो वैल्यू है सेम है क्या? नहीं. तो रिटर्न में क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है. ठीक है, मैंने सेम कॉपी किया कोड एंड मैंने इसे प्रिंट किया और वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है. ठीक है, तो ये सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव हो रहा है क्या? लार्जर वैल्यू नहीं. तो बेसिकली आईडी क्या करता है? देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर operator is check if the object means variable. ठीक है, objects are sharing same memory location. ठीक है,
आइडेंटिटी ऑपरेटर इज चेक इफ द ऑब्जेक्ट आर शेयरिंग सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, एंड ऑन डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव फर्स्ट इज एंड इज नॉट, ठीक है। नाउ व्हाई दिस इंपॉर्टेंट, इफ यू टेक, मैं हूं स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट 1 के परसेंटेज है विच इज 80, ठीक है, स्टूडेंट 2 वी हैव विच इज 80। नाउ परसेंटेज सेम है बट स्टूडेंट सेम है क्या? नहीं, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है क्या देन? नहीं, ठीक है। फॉर दैट रीजन हम किसका यूज करते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर का। नाउ मेरे पास एक डेटा सेट है, व्हाट आई डू, आई टेक वन डेटा सेट विच इज डेटा 1, ठीक है, डेटा 1 के अंदर मेरे पास वैल्यू है 1 2 3, देन डेटा 2 इज इक्वल टू अगेन वैल्यू 1 2 3। इधर तक क्लियर है? वी हैव टेकन अ टू डेटा स्ट्रक्चर विच इज 1 2 1 2 3 1 1 2 3, राइट। नाउ इक्वल्स टू क्या रिटर्न करेगा गाइस इसके ऊपर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इज नाउ, ओनली इक्वल्स टू हमने ऑपरेटर देखा है, एक बार चेक करो क्या रिटर्न कर रहा है। इक्वल्स टू ऑपरेटर ट्रू ही देगा। इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है? बेसिकली वैल्यू सेम है क्या नहीं चेक करता है, ठीक है। सो मैंने किया प्रिंट डेटा इक्वल्स टू डेटा 2, तो व्हाट वी विल गेट? ट्रू। बट यही मैंने किया विथ ईच के साथ डेटा 2 1 इज डेटा 2, तो ये मेमोरी एलोकेशन सेम होगा क्या इनका? नहीं, दोनों का मेमोरी एलोकेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि पाइथन क्या करता है, जो लार्जर डेटा सेट होते हैं, स्ट्रिंग हुआ, लीस्ट हुआ, उसको डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करता है। इधर तक क्लियर है सबको? हम अगर लार्जर डेटा सेट नहीं होगा, सी लार्जर मीन्स इन अमाउंट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर ना, वो मोस्टली तो अभी ये डेटा सेट क्या है? छोटा है, वैल्यू छोटा है, बट डेटा सेट इज डिफरेंट है ना, ठीक है। वैल्यू का मैंने बोला कि छोटी अमाउंट हुई तो उतना ही स्टोर करेगा, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर, वैल्यू अलग अलग ही स्टोर करेगा, ठीक है। डेटा सेट इज मैटर, वैल्यू सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए मैटर होती है, ठीक है। सी, इधर तक क्लियर है? नाउ मैंने किया ये वाला देख लो, डेटा माय डेटा क्लियर है? माय डेटा के अंदर मैंने स्टोर किया D1। अब बोलो गाइस, डेटा 1 एंड माय डेटा का मेमोरी लोकेशन सेम होगा या नहीं? सेम होगा, हाँ, ठीक है, सेम होगा। तो इज ऑपरेटर अब हेल्पफुल है क्या? यस, चेक करने के लिए क्या वही डेटा सेट है या नहीं, ठीक है। सो बेसिकली मैंने किया अभी प्रिंट इज डेटा 1 इज माय डेटा, ठीक है। सो रिटर्न में क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आइडेंटिटी ऑपरेटर, क्योंकि मेमोरी लोकेशन पे वर्क करता है, ठीक है। इतना ही इंटरव्यूज में भी आपको इतना ही पूछा गया कि इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड इज ऑपरेटर, ठीक है। सो बेसिकली इक्वल्स टू इज चेक इफ द वैल्यूज आर सेम और नॉट, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इज और नॉट इज, दे चेक इफ द मेमोरी लोकेशन सेम और नॉट। आपको इतना डीप में तब नहीं पूछा जाएगा कि लाइक 1 2 3 तो ये तो सेम ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये माइनर एज अ प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार सिस्टम में ट्राई करो, किसी को कुछ डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे, ओके।
अगर वैल्यू 255 रही रही तो करेक्ट 2, हाँ देन 2 उसका रेंज है समथिंग 255 तक है, तो मे बी करेक्ट दे सकता है, ट्रू दे सकता है, वो सर्टन मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट एक बार चेक करके देख। 300 के ऊपर कंसिडर करो कि नहीं होता है, उसके नीचे वो सेम ही दिखाई देगा। मैम एक बार समझो ना दा इज एंड यस इज यस, नॉट। एक बार हाँ ट्राई करो सिस्टम में, देन हम डिस्कस करते हैं और एक बार, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो आप छोटी वैल्यू भी लेके कभी कभी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा आपको कि इधर तो ट्रू दिख रहा है, उस वैल्यू को क्यों फॉल्स दिखाई दे रहा है। फिफ्टी फाइव पर्यंत ट्रू देता है दे रहा है ना, 255 ही है करेक्ट। 256 6 देख ले एक बार। और माइनस में माइनस में तो वैल्यू उसी तरह से होंगी, माइनस में तो वैल्यू जो ज्यादा माइनस वाली वैल्यू होगी, ठीक है, उसका मुझे सर्टन याद नहीं आ रहा है माइनस का, बट एक बार चेक कर लो माइनस का। चेक किया -5 और हाँ 256 तक हाँ हाँ, नहीं जीरो से है कुछ तो, माइनस से है क्या, ठीक है, जीरो से है कुछ तो, माइनस क्या इतना नहीं है, ठीक है, पर 256 पर्यंत देता है ना, 257 आली फॉल्स हाँ फॉल्स येते ना, माइनस वाली पण एक वेळेस चेक करू। किती माइनस बी कोड हुआ सबका, सी कंफ्यूज हो रहा है, एक बार और डिस्कस करते हैं हम। ओके, नाउ दिस इज अ पाइथन मेमोरी लोकेशन, मैंने पहले बोला, राइट। नाउ कंसीडर करो न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर, लीस्ट टपल ये डेटा स्ट्रक्चर कंसीडर मत करो, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, सो न्यूमेरिकल वैल्यू से 0 टू 255 तक, 256 250, हाँ 255 256 इतना, ठीक है, इतना कंसीडर करो। ये क्या करता है पाइथन, ले रहा है क्या, ले रहा है क्या, ओके, सो नेगेटिव में भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये जो वैल्यूज होती है, ये क्या करता है पाइथन, सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है, ठीक है, ऑप्टिमाइज करता है सेम मेमोरी लोकेशन पे, तो आपको इसकी आईडी क्या आएगी, सेम ही आएगी। ईच भी किया तो सेम भी आएगी, इक्वल्स टू भी किया तो सेम ही आएगी। करेक्ट है, क्लियर है इधर तक सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स और लीस्ट, ठीक है, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये वैल्यू छोटी भी हुई उसके अंदर क्या है ये नहीं मैटर होता, ठीक है, कौन सी कितना वैल्यू, एक भी वैल्यू हुई, टू भी वैल्यू हुई, दैट इज नॉट मैटर। बट ये पाइथन क्या करता है, वैल्यू भी सेम हुई, कुछ भी हुआ, उसको अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है, ठीक है। तो एज अ प्रोग्रामर आपको जानना है कि दो डेटा सेट तो सेम है, दिखने में तो सेम है, बट ये सेम मेमोरी लोकेशन पे है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डे 1 का डेटा मुझे सेम दिखाई दे रहा है, यही डेटा है मेरे पास, ठीक है, एंड डे 2 का भी डेटा मेरे पास यही है, तो मुझे समझ में क्या कैसे आए कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, वैल्यू सेम है, वैल्यू तो इसमें सेम है, बट इसमें वेरिएबल नेम क्या है, अलग है,
तो ये क्या हुए, दोनों अलग, Location है। हाँ उनका मेमोरी लोकेशन क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो पाइथन इस तरह से, ये इन फ्यूचर कभी आपको प्रॉब्लम आए मेमोरी के वजह से, इसलिए हमारे पास इज एंड नॉट इज ऑपरेटर है। क्लियर है अभी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो गाइस, क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन था, मतलब हाँ। वेरिएबल अलग है तो लोकेशंस अलग है, दैट आई अंडरस्टूड, हम्म। बट वो 256 का क्या है मतलब? बेसिकली वो पाइथन का यू कैन से फीचर है, ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पाइथन ही ऑटोमेटिकली करता है विद दिस नंबर। ठीक है, ये ऑलरेडी सेट है, पाइथन इसको ऑटोमेटिकली करता है, ये लाइक यू कैन से ये डिफॉल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए तो वर्किंग इसी तरह से होगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको ट्रू ही मिलेगा। ओके, इफ यू ऑल्सो सर्च ऑन वेब आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये उसी तरह से वर्क होगा। ठीक है, मैम इसको प्रैक्टिकली करके देखते क्या, समझा ही नहीं एक्चुअली वो क्या है। हाँ एक बार आप प्रैक्टिकली करके देख लो ना, इसलिए मैंने ये सारा कोड दिया है आपको। आपको जब इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा, आपको फॉर कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज एंड इक्वल्स टू, ये बहुत बार पूछा गया है। व्हेन आई वाज आल्सो फेसिंग द इंटरव्यूज, ये इंटरव्यू में लाइक यू कैन से 80-90% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोस्टली कंफ्यूज करने का टॉपिक है, इसलिए ज्यादा पूछा जाता है। एक बार क्लियर करके रखो कि 1 to 55 इसका मेमोरी लोकेशन सेम होगा, बट इसके आगे जब आप जाओगे उसका मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगा। फॉर दैट रीजन हम ईच का, Values के लिए ना। हाँ वैल्यूज के लिए, सिर्फ ओनली इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, आपको और एक दो एग्जाम्पल चाहिए तो वी विल जस्ट टेक अनदर एग्जाम्पल। मेरे पास अभी ये वैल्यू है, डेटा सेट है। मैम योर वॉइस इज ठीक है, ब्रेकिंग। जस्ट वेट अ मिनट। आई एम ऑडिबल टू यू गाइस? यस हेलो, आ रही है अब आवाज प्रॉपरली? यस। ओके, ठीक है। सी, अब मेरे पास क्या है, डेटा सेट है, नम इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू 1000, राइट। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नंबर है, ठीक है, एंड वैल्यू क्या है मेरे पास अभी, अगेन 1000। ठीक है, नाउ देखो मैंने चेक किया, प्रिंट वैल्यू तो सेम है, बट ये क्या हो सकती है, कुछ सेल्स हो सकता है। ठीक है, ये सेल है मेरे पास और वो नंबर है, तो ये सेम है क्या दोनों? ये सी, ये नंबर है मेरे पास, एक रैंडम मेरी आईडी है, ये मेरा सेल हुआ है, तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं, वैल्यू सेम है बट उसके आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने किया इज नम इज सेल, इसी तरह से आप चेक करोगे, फॉल्स मिला। ठीक है, बट मैंने नेक्स्ट टाइम चेक किया कि माय सेल्स, ये डिटेल्स है मेरे पास और उसके अंदर सेल। ठीक है, तो मैंने चेक किया कि जो माय सेल्स है, जो वेरिएबल है, ये मेरा सेल्स वही वेरिएबल है क्या, और वही डेटा है क्या? हाँ मेरा वही डेटा है। ठीक है, इस तरह से रियल लाइफ में वर्क होता है। एक बार आपकी सिस्टम में ये वाला लाइन ऑफ कोड ट्राई करो, इसी तरह से हो रहा है क्या? नन के साथ भी हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, इफ वेरिएबल इज नन तो हम इस तरह से भी यूज करते हैं। इफ मेरे पास डेटा है और वो नन है
तो हम मोस्टली इस तरह से करते हैं, डेटा इज नन। इक्वल्स टू हम मोस्टली यूज नहीं करते हैं नन के साथ, विच इज डेटा। ठीक है, तो आप मोस्टली इस तरह से भी ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, विच इज नन। एंड वाइस वर्सा, इफ मैंने चेक किया, इफ डेटा इज नॉट नन, तो डेटा तो नन है हमारे पास, मैंने इज नॉट किया तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। आप जब भी आप नन ये वैल्यू चेक करते हो, आप कभी भी देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल्स टू का यूज नहीं करोगे, विल ऑलवेज यूज इज। तुम्ही जेव्हा टाइम करता ना, तर तुम्हाला सजेशन होतं हा हा, ते कसं येतं? मी एक सेटिंग मधून केलंय एक, हा मला त्यात सेटिंग कसं म्हणतो, मी लिंक पाठवते ग्रुपवरती, ठीक आहे, ते एक व्हिडिओ आहे, ती लिंक पाठवते, मी पण व्हिडिओ बघूनच केला होता ते। की तुम्हाला काय टाइप करायचं ते हा, ते ऑटोमॅटिक, हा ते मोस्टली जेव्हा आपण मॅन्युअली करतो ते खूपच जास्त स्टक होतं, कारण आता जेव्हा आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेज स्टार्ट करू त्यामध्ये खूप साऱ्या मेथड्स वगैरे आहेत, ऍज अ प्रोग्रामर ऑल्सो सगळ्या आपल्याला मेथड्स आठवत नसतात, तर त्यासाठी आपलं सजेशन, इफ यू आर ऑल्सो वर्किंग इन एमएनसी, तो सजेशन इज गुड। ठीक आहे, तो मी काय करते, एक व्हिडिओ आहे, ते व्हिडिओ शेअर करून टाक, नाही ब्रॅकेटचं नाही, सजेशन येतं ना, हा काय टाईप करतात, आता मॅमने काहीतरी टाइप मग काहीतरी टाइप करा, हा आता हे हा. आता हे सजेशन AI assistant आहे ते on कुठून करायचं? setting हम्म. नाही येते ना कुठे? ट्राई किया गया सबने, इसी तरह से आंसर आ रहा है सबका, हाँ। क्लियर है अभी, इज एंड इज नॉट, मॅम जेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये राहते ते तेव्हा ऑब्विसली ते डेटा हे तर हा 256 हे तर सर्व बरोबरच, बरोबर, वास्टच राहील ना हम्म, हम्म, याच्यापेक्षा. ते तेव्हा वाचतं तर नेहमी फॉल्सच येईल ना, समजा आपण ते डिफाईन करायचा प्रयत्न करू. म्हणजे फक्त जे छोटे व्हॅल्यूज आहेत तेव्हा म्हणतायत का मोठ्या, छोटी व्हॅल्यू तर आहे हा 256 बरोबर आहे, हम्म. इंडस्ट्रीमध्ये तर मोठीच व्हॅल्यू राहील हा ना. मोठीच व्हॅल्यू असेल, मग तिथे काय असतं, आता आपण एखादी डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट केला, आपल्याकडे खूप सारे डेटा स्ट्रक्चर आहे, ठीक आहे, हा 500 equals to 500 केला जाईल ट्रू 500 ट्रू, ट्रू आले, कोणतं पायचाम आहे का, VS व्हीएस, हा होतं मी पण यूज करतो नाही नाही 200 ला नाही येणार, 200 500 ला नाही येणार, याला चला नाही, बघा. याला false. हा मे बी मल्टीवर्स मी दुसरं मोस्टली किती जणाला मोस्टली तर ट्रूच येतं, मग आता ते ऑप्टिमायझेशनचं काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, मेमरी लोकेशन पर वरती पण असेल, पण त्याची वर्किंग ह्याच्यावरती असंच आहे। त्याची आयडी चेक कर, आयडी चेक केली आहे का, काय चेक केली, आयडी चेक केली बस, प्लीज प्रिंट
5 असं का प्रिंट A declare केलं. A 5 is 5 नाही, असं का हा हा पहिले A equals to 500. हा, B equals to हा. 500. नंतर मग A A equals to 500 B equals to 500 print A is B ठीक है नाही फॉल्स False. दोन वेळा चेक करून. तर काय काय? कुणा कोणाला येत आहे फॉल्स ट्रू मोस्टली तर फॉल्स Pythonच्या- फॉल्सच येतंय मॅम. हा फॉल्सच आहे मे बी काहीतरी आता मग त्यामध्ये ह्याच्यावरही एक्सप्लेनेशन हेच आहे ह्याच्यावरती एक्सप्लेनेशन नाहीये ठीक आहे ID चं मला 500 declare केलं. काय ट्रूथ येते ID ची केली तरी सेम ID. आयडी तर सेमच आयडी नाही आयडी डिफरंट येईल सेम आहे. तू Python आणि C ठीक आहे एक वेळेस ट्राय करा मोस्टली तर ते त्याच्यापुरती तीच आहे पण मे बी कधीतरी येऊ शकतं पण हेच आहे आता ते त्यामध्ये ओके ठीक आहे सो बेसिकली आपल्याला आणखीन एक ऑपरेटर कव्हर करायचं आहे विच इज लॉजिकल ऑपरेटर्स ठीक आहे सो लॉजिकल ऑपरेटर आपण काय करू उद्या कव्हर करू ठीक आहे सो लॉजिकल ऑपरेटर्स वी हॅव अ अँड or and not ठीक है so basically if you're talking about merging a multiple condition at one time that time we use a logical operator ठीक है yes हाँ bitwise operator है but bitwise operator आपल्यासाठी तेवढा important नहीं है but what we do सिर्फ हम cover करेंगे basics of a bitwise operator वो deep again वो memory location पे होता है और हमारे लिए उतना important नहीं है ठीक है so basically जो हमारा logical operator है we will going to cover that one what we have discussed in today's session shortly एक बार discuss करते हैं see first of all arithmetic operator in arithmetic operator addition subtraction multiplication right comparison operator which is greater than equals to less than all these operator then assignment operator basically whenever you wanted to assign the value that time we use a assignment operator membership operator if the value is present or not that time we use a membership operator ठीक है and identity operator basically memory location पे check करता है is and not is ठीक है is not clear guys everyone I have shared the assignment कल मैंने ग्रुप पे एक लिंक शेयर की है उसमें असाइनमेंट ऑलरेडी है 6th तक असाइनमेंट है बाकी की जिस तरह से सेशन होंगे I'll add on the all the assignment one by one okay अब किसी को डाउट है तो you can just let me know otherwise I'll just stop the recording मेंबरशिप ऑपरेटर बताइए ना मैम. membership operator हाँ. ठीक है सी बेसिकली मेंबरशिप